A very good morning to all students. Welcome back to a village. No, just joking, not a village, to a chapter related to a village. Okay, we are still in Sumerpur, not a village. Don't get confused. I'm just joking with you. Before starting with the class, we should have a small laughter and a good smile on our face. So, we are starting again with our chapter, the story of village Palampur. This is our second class. In our first class, we have covered some portion of the chapter. What we have covered, what we have discussed? We have discussed about the story of village Palampur. What about Palampur? That Palampur is a well-developed village with a good network of roads, electricity, healthcare facilities, schooling, vehicles, means transportation facilities. So it is called, it was a well-developed village. Palampur was a well-developed village. Nearby 450 families used to reside there. But all the families are not equal and all are not having same caste. Out of that 450 families, only beta 80 families are rich, or we can say upper caste families. Remaining families are middle class or poor peoples. Or regarding, if we are discussing about the caste, so some are high caste, some are low caste, scheduled caste people. Dalits also used to reside in Palampur, and for Dalits separate areas were there in Palampur. Though it is a well-developed village, still the mentality of the people was like that. That's why in Palampur Dalits used to reside outside the village. Then we have discussed about the production. That what is production? To produce goods and services. Okay. For producing goods and services, we require certain factors of production, certain elements of production, and from that we have discussed 4 factors of production. First one, what I have told you, for producing anything we require certain place, land. Land is the first factor of production. Second factor of production is labor. Labor, both kind, educated, uneducated. Third factor of production, what? Capital. Capital, physical capital है. Physical capital means fixed or working capital. Fixed capital which remains with us forever for a long period of time, and working capital which used during the production process like money and raw material. So all these things are factors of production. Our today's heading is beta farming in Palampur. Today's heading is farming in Palampur, page number 7. Okay, under this heading we are going to discuss different subheadings. Okay, total 7 subheadings are given in your book, but today we will try to cover 4 to 5 subheadings. First subheading is land is fixed. So we will discuss this subheading regarding this village. इसको connect करेंगे subheadings को. ठीक है? तो first subheading is land is fixed. तो land is fixed means how कि in Palampur, not in Palampur, overall world बेटा, land is a fixed factor of production. Fixed factor of production, जमीन घटती बढ़ती थोड़ी नहीं है. जैसे हमारी एज, हमारी हाइट, हमारी हेल्थ इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे, जो लैंड है बेटा वो इंक्रीज नहीं होती है. ठीक है? जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है. वाटर इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, बट लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट रिमेन फिक्स्ड फॉर एवर. ठीक है? तो जब पालमपुर से इसको पॉइंट को अपन कनेक्ट करेंगे बेटा, तो इन पालमपुर लैंड वॉज फिक्स्ड. ठीक है? जो एरिया है लैंड का वो फिक्स्ड है. पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लोगों की नीड्स इंक्रीज होती जा रही है, बट जो लैंड है वो अपने आप में थोड़ी नहीं बढ़ेगी डे बाय डे. लैंड तो जितनी है उतनी ही रहेगी, isn't it? तो लैंड वॉज फिक्स्ड इन पालमपुर, और नियर बाय 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर वॉज डिपेंडेंट ऑन लैंड. हाउ? दे यूज टू फॉलो द प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ फार्मिंग. जो 75% पीपल है ना पालमपुर के, वो क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. और फार्मिंग के लिए क्या चाहिए? लैंड. और लैंड कैसा है पालमपुर में? फिक्स्ड है, इंक्रीज नहीं हो रहा है. टिल 1960s जितना भी लैंड था पालमपुर में, दैट वाज ऑलरेडी यूज्ड बाय द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, isn't it? बट जो कुछ वेस्ट लैंड बचा हुआ था जहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती थी, उस पे भी उन्होंने मेहनत करके फार्मिंग करना शुरू की. तो 1960s मतलब अर्ली 1960s तक की अपन बात करें तो द टोटल एरिया ऑफ that
Palampur land, cultivable land of Palampur was cultivated by the people of Palampur. Now there is no scope for further प्रोडक्शन फर्दर फार्मिंग. अब पालमपुर में कोई ज़मीन नहीं बची है जिस पे और फार्मिंग की जा सके. टोटल जितने भी फार्मिंग लैंड है उस पे फार्मिंग होना शुरू हो गई है पालमपुर में. तो द लैंड वॉज फिक्स्ड इन पालमपुर. सेकेंड हेडिंग है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अंडरस्टैंड बेटा कि इज देयर अ वे, क्या कोई तरीका है कि कोई जो है उस सेम लैंड पर और ज्यादा ग्रो कर सके. मैंने क्या कहा आपको कि जो लैंड है वो फिक्स्ड है पालमपुर में और उस पूरी लैंड पे फार्मिंग ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं. अब और लैंड अवेलेबल नहीं है. अब जितनी लैंड अवेलेबल है, क्या कोई तरीका है कि उतनी लैंड पे और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा ग्रोइंग की जा सके ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस, देयर आर टू वेज to increase production on the same piece of land. वो दो वेज, वो टू वेज हैं. मल्टीपल क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में क्वेश्चन करना है. बेटा होमवर्क मैं आपको इसी तरीके से वीडियो बनाते बनाते बता दूंगी. अंडरस्टैंड. तो वीडियो देखना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी अगर आपको होमवर्क चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सेकेंड क्वेश्चन आज का अपना होगा कि इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो फ्रॉम द सेम पीस. ये अपने आप एक क्वेश्चन है, नोटबुक में आपको करना है. तो यस, देयर आर टू वेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकंड इज मॉडर्न फार्मिंग. इन दोनों वेज के बारे में आपको मैं बाद में बताती हूँ. पहले अपन ये देखते हैं कि वहाँ के लोग जो पालमपुर के फार्मर्स हैं वो फार्मिंग किस तरीके से करते हैं, कैसा पैटर्न है. तो सबसे पहले तो बुक में ये दे रखा है कि ये जो विलेज है पालमपुर का, दिस इज द पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. What I have told you before starting the story, I have told you the story that is given in your book is a hypothetical story, means imaginary story, काल्पनिक story. तो according to this hypothetical story, it was imagined that this Palampur is the part of western Uttar Pradesh. Understand? Second thing, वहाँ के farmers कैसे farming कर रहे हैं? The farmers used to grow different crops on the same piece of land on in different season. अलग अलग seasons में अलग अलग तरह की crop उसी फील्ड पे, उसी खेत पे जो है फार्मर्स ग्रो करते हैं. सबसे पहले तो रेनी सीजन में वो कौन सी क्रॉप ग्रो करते हैं फार्मर्स पालमपुर के? दे यूज टू ग्रो द खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप में दे यूज टू ग्रो द बाजरा एंड जवार, एंड दे यूज दैट बाजरा एंड जवार फॉर फीडिंग देयर कैटल. Understand? So in rainy season, the farmers of Palampur used to grow kharif crop of bajra and jawar, and they use that bajra and jawar for feeding their cattle. And after rainy season, in October to December, they used to grow on same field potatoes. एक बार रेनी सीजन खत्म हो गया, जवाहर बाजरा ग्रो हो गया, उसको हार्वेस्ट कर लिया. उसके बाद जब फील्ड खाली पड़ा है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर और सेम पीस ऑफ लैंड, दे यूज्ड टू ग्रो पोटैटोज. पोटैटोज ग्रो हो गए. आफ्टर दैट इन रबी सीजन, मतलब जब विंटर्स आते हैं, पोटैटोज को हार्वेस्ट करके दे यूज्ड टू ग्रो द रबी क्रॉप. रबी क्रॉप लाइक वीट. ठीक है, विंटर्स में वो क्या ग्रो कर रहे हैं? वीट. और वीट का अगर उनके लैंड पे एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो अपनी जरूरत के लिए रखते हैं, और रिमेनिंग जो ज़्यादा जो हो रहा है वीट, दे यूज टू सेल इन द नियर बाय टाउन रायगंज. पालमपुर वॉज वेल डेवलप्ड विलेज. इट वॉज कनेक्टेड विद cities and other towns and villages. So Palampur was connected with the Raiganj and Shahpur, and the farmers of Palampur used to grow maximum amount of wheat. First they kept some amount for their family, and after keeping they used to sell the remaining produce to the nearby town Raiganj. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? ट्रेडिंग भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं. अंडरस्टैंड? तो पूरा लाइफ स्टाइल अपन डिस्कस कर रहे हैं पालमपुर के लोगों का कि 75% पॉपुलेशन क्या है? फार्मर्स है. फार्मर्स के अलावा जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड पे वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं. आफ्टर दैट
जो क्रॉप्स एक्सेस में ग्रो हो रही है तो वो नियर बाय विलेज में ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। उसके अलावा क्या करते हैं, वो कुछ जो लैंड का पोर्शन है ना, वहाँ पे दे यूज टू ग्रो द शुगर केन। शुगर केन ग्रो करके उसका जो रॉ फॉर्म होता है जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, वो कहाँ सेल करते हैं, पास के ही गांव शाहपुर में। ठीक है, तो इस तरह से एक तरफ तो फार्मर्स जो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी सेल कर रहे हैं, एक तरफ जो फार्मर्स शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको जैगरी के रूप में कन्वर्ट करके शाहपुर में सेल कर रहे हैं। तो ये पूरा लाइफस्टाइल डिस्कस कर लिया हमने पालमपुर के फार्मर्स का कि वो किस तरीके से किस सीजन में क्या क्रॉप्स ग्रो करके उनका क्या यूज करते हैं। अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इज देयर अ वे टू ग्रो। आई हैव टोल्ड यू टू वेज, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग। पहले मल्टीपल क्रॉपिंग समझते हैं बेटा, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। Multiple cropping, the definition is given in your book on page number 3 right hand side behind, ठीक है, below this blue box 3 lines are given. To grow more than one crop, to grow more than one crop on the same piece of land during 1 year is known as multiple cropping. This is the definition of multiple cropping. While you are going to write this answer now, you have to write this definition also. ठीक है, कि मल्टीपल क्रॉपिंग इज ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, एक से ज्यादा जब उसी पीस ऑफ लैंड पे क्रॉप ग्रो करते हैं। हमने क्या डिस्कस किया, दे यूज टू ग्रो खरीफ क्रॉप, दे यूज टू ग्रो पोटैटोज, दे यूज टू ग्रो रबी क्रॉप, दे यूज टू ग्रो शुगर केन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग सेम ईयर इज कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो फार्मर्स क्या यूज करते थे पालमपुर के, मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करते थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि 1960s तक उन्होंने पूरे लैंड को कवर कर लिया था। अब जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उनकी डिमांड्स इंक्रीज हुई। अब वो नए मेथड्स ढूंढने लगे कि इज देयर एनी अदर वे टू इंक्रीज मोर ऑन दैट लैंड। तो ऐसे में डेवलप हुआ कंसेप्ट मॉडर्न फार्मिंग का in late 1960s. Now what is modern farming? Modern farming is beta using modern techniques, using HYV, high yielding varieties of seed, HYV, high yielding varieties of seeds, using chemical fertilizers, using pesticides, using maximum using maximum amount of water। ठीक है, जब बहुत सारा पानी, बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड डाल के जब मोर प्रोडक्शन किया जाए तो उस पूरे मेथड को अपन बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करने को कहते हैं मॉडर्न फार्मिंग। ठीक है, दिस कंसेप्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग लेट 1960s, जब फार्मर्स के पास लैंड खत्म हो चुका है पालमपुर में। अंडरस्टैंड बेटा। अब जब ये कंसेप्ट आया तो इसमें क्या हुआ, पहले जो फार्मर्स थे पालमपुर के, दे यूज टू डू फार्मिंग बाय ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड टेक्निक्स। ओल्ड टेक्निक्स से कैसे, मतलब हाथ से बीज बोते थे, दे यूज टू हार्वेस्ट फ्रॉम हैंड, दे यूज काउ डंग्स। ठीक है, नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स दे डोंट यूज। तो नेचुरल तरीके से ग्रो करते थे तो जो प्रोडक्शन था वो लिमिटेड होता था। ठीक है, क्योंकि पूरा हैंड लेबर लगता था तो लिमिटेड प्रोडक्शन होता था। बट आफ्टर 1960s जब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स आए मार्केट में, HYV वैरायटीज ऑफ सीड्स इंट्रोड्यूस हुई, तो द फार्मर्स स्टार्टेड यूजिंग द HYV वैरायटीज ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर देयर फार्मिंग। तो इससे इम्पैक्ट क्या देखने को मिला कि जो फार्मिंग थी, जो प्रोडक्शन था, जो यील्डिंग थी, जो आउटपुट था, जो क्रॉप्स था, वो 3 टाइम्स ग्रो होने लगा। जहां पहले ही एक लैंड पर लिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा था, सपोज 1000 बोरीज निकल रही थी वीट की, 1000 क्विंटल वीट हो रही थी, तो 3000 क्विंटल, मतलब इतना अच्छा इम्पैक्ट हमको देखने को मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का। मॉडर्न ग्रीन रिवॉल्यूशन को ही मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी कहते हैं अपन लोग। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है 3 टाइम्स इंक्रीज, 3 फोल्ड्स इंक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड बेटा। और पर ये देखा गया कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था, ये ओवरऑल इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में सक्सेसफुल नहीं रहा।
ये उन्हीं एरिया में सक्सेसफुल रहा जहाँ पे वाटर फैसिलिटी अच्छी थी। स्पेशली ये सक्सेसफुल रहा आपकी बुक के अकॉर्डिंग पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि पालमपुर वॉज इमेजिन्ड एज अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो ऑब्वियसली पालमपुर वॉज पार्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो पालमपुर में भी देखने को मिला। और पालमपुर के फार्मर्स ने जब ये मॉडर्न तरीके अपनाए तो दे गेट 3 times मोर प्रोडक्शन दैन अर्लियर। ठीक है, नाउ द थर्ड टॉपिक इज विल द लैंड सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है कि लैंड क्या इस मॉडर्न तरीकों को HYV वैरायटीज ऑफ शीट्स को और इनको झेल पाती है, सस्टेन रह पाती है, जिंदा रह पाती है। सस्टेन मतलब जिंदा रह पाती है, लिविंग कंडीशन में रह पाती है। तो हियर इन दिस हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हम देखेंगे कि जब फार्मर्स ने, मैंने क्या बताया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और मॉडर्न फार्मिंग में जब हम HYV वैरायटीज ऑफ शीट्स यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, तो ऐसे में क्या होता है बेटा, ऐसे में हमको वाटर भी मैक्सिमम यूज करना पड़ता है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड पुटिंग मोर एंड मोर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, तो वाटर में क्या होता है, सैलिनिटी, तो ऑब्वियसली सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। सॉइल का जो उपजाऊपन है, जो फर्टिलिटी है, वो डे बाय डे लॉस्ट होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। अंडरस्टैंड बेटा? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और लैंड जो है सस्टेन। इस क्वेश्चन का आंसर है नो, द लैंड विल नॉट सस्टेन, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर है, केमिकल्स है। जितना आप जमीन पे केमिकल डालोगे उतना जो लैंड की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी, लैंड की फर्टिलिटी जो है वो खत्म होती चली जाएगी। पेस्टिसाइड्स डालोगे तो वो भी क्या है बेटा, एक तरीके से इट वॉज ऑल्सो अ केमिकल। तो पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर will reduce the fertility of land and at the same time excessive amount of water gives salinity to the land and the land will reduce its fertility. Understand beta? So this question answer is no, the land will not sustain. Here I am giving you the third question of homework कि what are the impacts of green revolution? What are the impacts of green revolution? In that you have to write the पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पॉजिटिव मैंने आपको बताया इम्पैक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का, व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से द प्रोडक्शन ऑफ द लैंड इंक्रीजेस 3 folds, isn't it? Farmers gets more and more production from the same piece of land. और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। प्लस जब उस सॉइल में रेन आती है तो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स बहकर कहाँ जाएंगे, लेक्स में, रिवर्स में। लेक्स और रिवर्स में क्या है, इन लेक्स एंड रिवर्स देयर इज एक्वेटिक लाइफ, इट डिस्ट्रॉयज दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स डिस्ट्रॉयज द एक्वेटिक लाइफ। तो ऑल दीज आर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अदर्स यू कैन ऑल्सो राइट बाय डिस्कसिंग विद योर पेरेंट्स। अंडरस्टैंड? अवर टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन Palampur. The answer to this question is the land is distributed unequally. Unequally, you can see on the page number 6 here beta. See, this is the distribution of land given to you. Here you can see some plots are large, some plots are small. This shows the distribution of the land among the villages in Palampur. ठीक है? In this point we will discuss that in Palampur there are 450 families. Out of beta that 450 families, 1/3 of the families were of Dalits and Dalits were not having their own land. बात समझ में आ रही है? पालमपुर में कितनी फैमिलीज थी? 450। और उन 450 फैमिलीज में जो 150 फैमिलीज है ना बेटा, उनके पास जमीन ही नहीं है, जमीन नहीं है, they belongs to a scheduled caste. And what I have told you earlier, that scheduled caste used to reside outside the village. They were not part of the main society of the village. Understand? And they were not having their own land for farming. Even they were not having their own houses for residing. They used to live in kacha houses made of mud and straws.
अंडरस्टैंड? ठीक है, तो उनकी खुद की जमीन नहीं थी, 150 फैमिलीज की, और जो रिमेनिंग फैमिलीज बच गई 300 में से भी जो 240 फैमिलीज है ना बेटा, उनके पास जो है 2 हेक्टर से 2 हेक्टर लैंड को मेजरमेंट करने का यूनिट जो होता है दैट इज हेक्टर। सॉरी बेटा। तो जो 240 फैमिलीज बच गई 300 में से, उन 240 फैमिलीज के पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है। आ रही है बात समझ में? तो देवर स्मॉल फार्मर्स, तो उनके लैंड पर जो भी प्रोड्यूस होगा ना बेटा, वो सिर्फ उनकी फैमिली के लिए यूज होगा, वो सेल नहीं कर सकते क्योंकि इतने कम लैंड पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा ही नहीं। तो देवर स्मॉल फार्मर्स, देवर पुअर फार्मर्स। 150 के पास तो है ही नहीं फैमिलीज, 240 के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, तो देवर पुअर फार्मर्स। और जो रिमेनिंग 60 फैमिलीज बच गई ना, उनके पास जो है 2 हेक्टर से ज़्यादा है, और कुछ ही फ्यू फैमिलीज है जिनके पास 10 हेक्टर लैंड है। तो इस तरह से देयर वाज अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमॉन्ग द फार्मर्स इन पालनपुर। ये हेडिंग क्लियर है बेटा? आज की अपनी लास्ट हेडिंग जो हम कवर करेंगे, हु विल प्रोवाइड द लेबर। पालनपुर में लेबर अपन ने क्या पढ़े थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। लैंड अपन ने डिस्कस कर लिया पूरा पालनपुर का। क्या डिस्कस किया हमने? कि लैंड जो था वो फिक्स था, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। फार्मर्स जो है पालनपुर में दे यूज्ड टू डू मल्टीपल क्रॉपिंग एंड आफ्टरवर्ड मॉडर्न फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लैंड। तो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी आर मूविंग टू अ सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर। Then the question arises, who will provide labor in the पालनपुर? पालनपुर में लेबर कौन प्रोवाइड करता है? तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि 150 फैमिलीज वाज लैंडलेस, ठीक है, और 240 जो थे स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, तो उनके खेतों पे इतना काम होता ही नहीं था। तो दीज लैंडलेस फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स यूज टू प्रोवाइड लेबर टू अ लार्ज फार्म्स। अंडरस्टैंड बेटा? दे यूज टू प्रोवाइड लेबर इन द फार्म्स ऑफ लार्ज land owners. So these were the laborers in Palanpur. So here I am finishing our today's topic. The remaining chapter I am going to cover in the next class, and I will try to finish the whole chapter in the next class. Homework I have already given in the video. If there will be another question, I will give you afterwards by writing. Understand? Okay beta, thank you.